नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। भारत बंद में 25 करोड़ श्रमिक किसान शामिल, सुरजवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। Today, Bharat Bandh has been called by 10 trade unions, including INTUC, INTUC, C2, SEWA, LPE, UTUC, and dozens of other trade unions. I am told that over 25 crore workers and farmers unions are participating today in Bharat Bandh. Why Bharat Bandh? Perhaps because BJP's new translation is B for Bandh Karo, J for Jobs Chhino, and P for Fasad Karwao. Today, the trade unions of the country are on strike on Bharat Bandh. Why? The first and most principal issue is there are no jobs for the young in the country. Over 30 lakh jobs in public sector undertakings in Government of India are today lying vacant, but Prime Minister Modi and BJP government refuses to fill them. Some of the examples are, there are 2,50,000 vacancies in Indian Railways. There are 1,55,000 vacancies in India's armed forces, our Army, Navy, Air Force. There are 85,000 vacancies in Central Armed Police Forces, CRPF, BSF, ITBP. A question must be asked, why is Government of India refusing to fill up these 30 lakh vacancies and provide jobs to India's youth? Another facet is unemployment. Even for, as per admitted rate is at about 7.5%. As per Center for Monitoring of Indian Economy, it is over 10%. Among the graduates and postgraduates, unemployment is nearly 30%. Unemployment in India is at a 45-year high. There are no jobs. And that's why trade unions are trying to draw attention of Modi government by going on Bharat Bandh today. Manrega, the instrument of livelihood for the poor, marginalized, SC, ST, OBCs is under attack by Prime Minister Modi and his government. The budget for Manrega has got stagnated at about 86,000 crores. Out of that, 10,000 crores are always paid in last year's dues. We gave 100 days of statutory guarantee of work every year. But Government of India has now shown that we only provide 44 days of work and not 100 days of work. 7 crore people, Manrega workers, have lost right to work on account of linkage of Manrega with Aadhaar. These are questions that our trade unions are today raising. Wealth inequality is one of the biggest issue that plagues India today. Amir or Amir, Garib or Garib. Friends, 10% of Indians have 77% of India's wealth, while the bottom 15% of Indians have only 10% of India's wealth. How will the country run? India today is the 50th poorest country in the world by way of per capita income. Next only to Bangladesh, next only to Cambodia, Haiti and Kenya. The world per capita income is over $14,000. Ours is $2,900 per year. India today ranks at 111th rank
out of 125 in Global Hunger Index. India today ranks 134th out of 193 countries in the Human Development Index. India today ranks 127th out of 146 countries in the Global Gender Gap Index. India today ranks 121 out of 173 in Global Quality of Life Index. And India today ranks, this is for you, 159th position out of 180 in the Global Press Freedom Index. That's why trade unions are on strike. And our economy is in huge distress today. Why? I want to give you 4 or 5 indices. There is a huge drop in motorcycle and scooter sales used by common people. The companies are saying so. There is a huge drop in sale of fast-moving consumer goods. Hindustan Lever is saying so, Dabur is saying so, and Marico is saying so. Who buys a packet of Maggi, a packet of biscuits? Common middle class, salaried class people. There is a huge crisis in textile sector. From Tirupur in Tamil Nadu to Panipat in Haryana to Surat in Gujarat, there is a 30% production drop. That means people are not buying enough. They don't have the money to buy. There is a huge crisis in the real estate sector. There are nearly 10 lakh units for middle income and low income groups that are lying vacant. People are buying flat worth hundreds of crores, but there is no money with salaried class to buy a flat for 50 lakh, 40 lakh, 30 lakh rupees. That is the crisis. And there is wage squeeze. I am not saying so. FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce, along with Quest Corp Limited, they did a survey. And that survey told us that while wages have increased by 0.8% to 5%, inflation is 5.7 to 6%. So wages are not even increasing as per the inflation rate. Where should the middle class go? Where should salaried class go? Where should the poor go? I am sure you as journalists also face the same quandary every day at home. And 80% of India's workforce is in unorganized sector. The same survey says that 60% of India's workers don't have a written contract. Then how will they have job security if they don't have a written contract? 53% of India's workers don't have any social security. That means no insurance, no pension, no nothing else. This is the crisis that is building in India. And that's why India's trade unions and 25 crore workers are on strike today. We urge upon Modi government and the BJP, both in Karnataka as also nationally, to open their eyes and see the problems that people face today. सिलीगुड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में लेकर 2 गुटों में झड़प, एक इलाके में तबाही। ऐसा है आगामी 14 से हर लड़की लोग को टोकता है, हम लोग का बहन जब चलता है।
फिलहाल फिलहाल बंद कर दो। गंडी লাগবে আমি সিধা সিধি দেখেন কত বড় ঢিলবাজি চালাচ্ছে, ঢিল না, এটা কালবার দিয়ে মারছে। আমাদের কাছে মরম আছে, নিজে আছে, আমরা বের করি। আমি বলছি আচ্ছা পেছনে যান। उद्धव ठाकरे का राज्य सरकार पर हमला, शिक्षकों की उपेक्षा। विधिमंडळात येण्यापूर्वी आझाद मैदानला गेलो होतो आणि आझाद मैदानामध्ये एकतर विना अनुदानित शिक्षक आणि दुसरं म्हणजे गेले अनेक वर्ष आम्हाला घरं द्या ही मागणी करणारे गिरणी कामगार, या दोघांची आंदोलनं तिकडे सुरू आहेत। मला एका गोष्टीचं वैषम्य वाटलं, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन इकडे सुरू आहे, लोकप्रतिनिधी इकडे आलेले आहेत, परंतु लोक ज्या व्यथा त्यांच्या वर्षानुवर्ष मांडतायत ते मात्र आझाद मैदानात तिकडे आंदोलन करतायत। साहजिकच आहे, शिक्षकांना सुद्धा आम्ही वचन दिले की आम्ही तुमच्या लढ्यामध्ये, तुमच्या न्याय हक्काच्या लढाईमध्ये तुमच्या सोबत आहोत। गिरणी कामगारांचा तर प्रश्नच नाही, कारण गिरणी कामगारांचा संप जर का तांत्रिकदृष्ट्या पाहिलं तर अजूनही सुरू आहे आणि त्यावेळेला या गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली। वन थर्ड हा जो काही प्रकार केला गेला, गिरणी कामगारांची घरं तर गेलीच, गिरण्यांच्या जमिनी गेल्या, तिकडे टॉवर्स उभे राहिले, अनेक मॉल उभे राहिले आणि ज्या गिरणी कामगारांनी रक्त सांडून घाम गाळून ही मुंबई उभी केली, नवे संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करून ती मिळवून दिली, तो गिरणी कामगार मात्र स्वतःच्याच नगरीमध्ये बेघर झाला। आमच्यावरती नेहमी एक आरोप केला जातो जो अर्थातच खोटा आहे की शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काय केलं। माझं सरकार जर का यांनी पाडलं नसतं तर साहजिकच आहे, मी यांना सर्व गिरणी कामगारांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील पोलिसांना सुद्धा घरं द्यायला सुरुवात केलीच होती, पण विशेषतः गिरणी कामगारांना पोलिसांना ही मुंबईमध्ये घरं दिली असती, पोलिसांना मिळत आहेत पण अजूनही दिली असती। आज आमची हीच मागणी आहे की एका बाजूला गिरणी कामगार हा मुंबई बाहेर फेकला जातोय, त्यांना शेलू आणि वांगडीमध्ये पाठवलं जाते आणि धारावीच्या माध्यमातून अदानीला मात्र अख्खी मुंबई आंदण दिली जाते। तर आमची आग्रहाची मागणी आहे की गिरणी कामगारांना धारावीमध्ये घरं द्या धारावीकरांसोबत, आणि अदानींचे टॉवर हे शेलू आणि वांगडीला उभे करा, जाऊ द्या तिकडे। देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानींनी जरूर टॉवर बांधावे, नाहीतर त्यांना भरपूर TDR मिळालेलाच आहे, तो TDR त्यांनी देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती वापरावा, तो TDR त्यांनी शेलू आणि वांगडीला वापरावा, तिथे सगळे टॉवर बांधा। पण ज्यांनी हक्कानी मुंबई मिळवून दिली त्या गिरणी कामगारांना मात्र तिथे पाठवण्याच्या ऐवजी गिरणी कामगारांना धारावीत घरं द्या, गिरणी कामगारांना कुर्ला मदर डेअरीची जी जमीन
ही सुद्धा दिलेली आहे अदानीला, तर तिथे गिरणी कामगारांना घरं द्या आणि अदानींची टॉवर हे शेलू आणि वांगणीला जाऊ द्या. आमचं काही म्हणणं नाही. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानीने टॉवर बांधावी, आमची काही म्हणणं नाही आहे. तर अशा या गोष्टी आहेत. आणि शिक्षकांना सुद्धा तुम्ही वाटेल तसं वेडवाकडं इतर कामं देऊन वापरून घेता. म्हणजे मराठीचा मुद्दा आता गरम झालेलाच आहे. नुसता हिंदी सक्तीचा GR त्याचा विरोध करून चालणार नाही. तर मी मराठी माणूस आता एकवटलेला आहेच. आमचं म्हणणं परत परत सांगतोय की कोणत्या भाषेला विरोध नाही, पण सक्तीला विरोध आहे. त्याच्यामुळे हिंदी सक्तीच्या GRला विरोध करून उपयोग नाही आहे. तर तो GR काढणाऱ्यांना, तो GR लादणाऱ्यांना, हिंदी सक्ती करणाऱ्यांना आपण विरोध केला पाहिजे. तर हे असे काही मुद्दे आहेत ज्याच्यावरती आता रोज चर्चा चालू आहे. मनोज झा का बयान, बिहार बंद का मकसद लोकतंत्र की समझ जगाना. देखिए, मैं समझता हूं सैद्धांतिक तौर पर पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है. जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता है. ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है. मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं. हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है. उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है. संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं. ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें. तो ये उचित नहीं है. मनोज जी, जिस ज्ञानेश कुमार वो तो कह रहे हैं कि एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा. नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आप एक कस्टोडियन है, लेकिन उसमें उससे पहले की चीज है कंसल्टेशन. आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत के बाद होंगे. था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय. 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है. ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो. CEO बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली. आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं. परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान. आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं. तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे. दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने. इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है. आप कुछ नहीं है. ये निरंतरता है. कोई नया आयोग फायोग नहीं होता. चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा. खनन में पारदर्शिता का दावा, केंद्रीय मंत्री बोले अब नहीं होता भ्रष्ट आवंटन. प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के नाते जिम्मेदारी संभालने के बाद एक अलग अलग रिफॉर्म्स माइनिंग सेक्टर में किया है. जो पहले तो जो माइंस बिहार में 2 करोड़ मतदाता सूची से बाहर, CPI का बड़ा आरोप. You know, due to the anti-people, anti-poor and anti-peasant and undemocratic policy of Narendra Modi government during, and also the carving of democratic rights through undeclared emergency in last 11 years, life of the people has become miserable. And
unemployment is unprecedented, price rise also taking toll of every individual, income is not increasing, there is no work, and in that situation the right of the people also are under attack, and farmers are suffering because the same suffering, they are not getting the price of their crops and they are insisting for MSP, but Modi is betrayed the farmers, not doing that. Then workers also under attack with the 4 labor code. Already they have started implementing it. In certain state 12 hours work they are trying to implement, and trade union rights and all things will be carved. In that situation, the people of the country, Indian workers, peasants, agricultural workers, student, women, employees and all sections are fed up. Middle class also fed up because there is no middle class job, no government recruitment, and public sector is become giving selling to the multinational corporation. The corporation are gaining in the crony capital and common people suffering is unprecedented. In that situation, the working class of this country, they decided that we cannot accept this without challenge. So they 10 central trade union and all the employees federation and others, they decided that they will hold all India general strike on 1st 20th April, but because of this war situation they changed the date. 9th July was agreed to hold the strike. Today is the day of struggle all over the India, and farmers and workers, agricultural workers, we extended support to the workers because workers and peasants, they are the basic backbone of the Indian production. And so workers and agricultural workers and farmers, they decided to extend the support and to organize rural Bandh. Village area Bandh will be organized by the agricultural workers. That now in the morning at 6 a.m. started all over the country, and we hope it is an unprecedented Bandh against Modi's anti-people policies. Bihar also, along with the All India Bandh, Trade Union Bandh, Kisan Bandh, the Bihar political parties, they have given a special call for Bandh against this conspiracy to defranchise more than 2 crore voters in Bihar. So because of that, they are also on the street. So Bihar strike will be total, no doubt about that. But the Chief Election Commissioner said the democracy. But how it will be decided? Last 75 years, we are developing a system. Voter list is there. Every year, the voter list is updated. If people die, they remove. If new born, they are added. It's a continuing process. But intensive that electoral role, it never had it. And for that, the way they have decided, that is totally against the democratic principle. They are challenging the citizenship of the voters. But in Indian constitution, it is universal franchise. Who borns in this country, automatically they become the voters. So in that situation, they are saying the birth certificate of mother and father. Can Narendra Modi, I challenge, can Narendra Modi produce the birth certificate of his father and mother? If Narendra Modi can and Amit Shah can produce their birth certificate of mother and grandmother, then we will see that it is possible. No people have that. Common people had not there. Poor people have no record, and now they want to defranchise it on the government. So it is a conspiracy against the universal franchise, voting rights. We cannot accept that. This is one of our demand in the strike. And this is another barbaric instruction of the state power. Because business is your fundamental rights. Anybody, small business, tea shops, pan bidi shop, and all these things for common things on the wayside, people run the business, and with that small income they survive somehow. But if government is saying, last year they said your name of the shopkeepers will be written on the shop, so that
whether it is Muslim or not, it can identify it. So Muslim shops will not be able to sell things. So in that way, see, they want to suppress and destroy the minority economy. And this year again they are starting. This is all anti-democratic, this is anti-constitutional, anti-minority, and this is a barbaric. That cannot be accepted by any democratic people. हिमाचल त्रासदी पर बोले जेपी नड्डा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया राहत कार्य। आज हिमाचल प्रदेश में मुझे मंडी जिले में आने का मौका मिला है और जो सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 51 स्थानों पर जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसमें आपदा पीड़ितों से मिले सीएम सुख मंडी राहत शिविर में बांटा दुख सुख। जो सरकार की तरफ से मिल सकता है, जो हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में है ना, वो तो ये है कि हमारा जो सरकारी जगह है उसमें फॉरेस्ट है आपका सारा, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं, उसमें दिल्ली वाले ही परमिशन देते हैं, दिल्ली की सरकार। जो पैसा है वो मैं आपको दूंगा, पैसा आपको घर बनाने के लिए भी दूंगा, गाय गई उसका भी दूंगा, बकरा गया उसका भी दूंगा, भेड़ गई उसका भी दूंगा, मकान बनाने के लिए भी दूंगा, वॉशरूम बनाने के लिए भी दूंगा, सबको दूंगा। ज्ञानवापी संघर्ष समिति की मांग, उदयपुर फाइल्स का टैक्स फ्री किया जाए। शायद आई एम नॉट श्योर, शायद उस फिल्म में कुछ चीजें हैं कि जाति विशेष के संबंध में रहा होगा। इस पे आप लोगों का ये ज्ञापन में ये कहना है कि उसको टैक्स फ्री किया जाए और जाति विशेष से संबंधित कोई भी बात उसमें नहीं कही गई है, बल्कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बातों को उठाया गया है। इसलिए वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए सिनेमा हॉलों में और उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये जो ज्ञानवापी संघर्ष समिति के लोग थे उन्होंने आगे के दिनों में क्या इसमें आप विचार करेंगे, क्या करना है? हाँ, निश्चित तौर पे ये ज्ञापन आया, पब्लिक की तरफ से डिमांड आया, तो इस पर कार्रवाई तो होगी। इसमें क्या कुछ है इसके बारे में? ये ज्ञानवापी संघर्ष समिति है, इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स करके कोई फिल्म रिलीज हो रही है जिसके बारे में इन्होंने ये हमको दिया है, एक आपत्ति प्रकट करी है कि उसमें किसी जाति विशेष से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, बोली गई है। दूसरी बात ये कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। तो जब रिलीज की जो बात इन्होंने कही है तो उस पर यह कहना है कि जहां भी सिनेमा ये लगे, फिल्म लगे, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। मुस्लिम समाज की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि फिल्म को रिलीज न किया जाए और इस तरह की उनकी ओर से भी ये मांग की जा रही है। उन्होंने भी आपको ज्ञापन भेजा है। अभी हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन तो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड होता ही है और वो ये आज जो हमको ज्ञापन मिला है वो ज्ञानवापी संघर्ष समिति की तरफ से। सर, इससे पहले जो ज्ञापन मिला था वो किसने दिया था? वो ज्ञापन भी मैं कल था नहीं, कल मैं इलाहाबाद में था। अभी शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हो रही है, सावन का पहला दिन है, जुमे की नमाज भी है। बड़ा मसला ये है कि पूरी व्यवस्था को किस तरीके से आप लोग संभालेंगे, क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया, क्योंकि मुस्लिम समाज लगातार इस फिल्म को लेकर गुस्से में है। इससे पहले भी देखिए ये ज्ञापन आज मिला है और बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इस मंच पे डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और निश्चित तौर पर यह है कि इस फिल्म में ऐसे कंटेंट है सर कि जो सीधे कुछ एक ऐसे धर्म विषय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अंजुमन इंतजामिया का ये कहना है कहीं कहीं अराजकता हो सकती है, खासतौर पर काशी धर्म नगरी है, सावन का महीना है, ये तमाम विषय इसको लेकर फोर्स की ही जो बात है, अवेलेबिलिटी, फोर्स भी हम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। और फिल्म को पास होना या न होना ये हमारा विषय नहीं, ये सेंसर बोर्ड का विषय होता है। सेंसर बोर्ड ऑलरेडी इसीलिए बैठा होता है कि वो फिल्मों को देखता है कि किसी की भावनाएं आहत न हो, और अगर वहां से पास है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोकने का कोई औचित्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है, तो क्या जब फिल्म लगेगी तो जो दर्शक होंगे, जो श्रद्धालु हैं, जो भी देखना चाहते हैं, सिक्योरिटी रहे कि वहां पर जो बिल्कुल वो देखेंगे, क्योंकि वो जब हो गया है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया, तो फिर हमारे लेवल पे कुछ रह नहीं जाता है, सिर्फ एक पर्याप्त सुरक्षा बल रह जाती है, वो हम लगा देंगे। इससे पहले भी देखा गया है कि जुमे की नमाज जब हुई है और जब ऐसे इशू रहे हैं तो ज्ञानवापी के आसपास बड़ी संख्या में सर भीड़ इकट्ठा हुई है, तो इस बार भी क्या इसको लेकर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कुछ और अलर्ट की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? श्योर, निश्चित तौर पे, क्योंकि कल जुमे की नमाज है, सेंसिटिविटी रहती है, संवेदनशीलता रहती है, निश्चित तौर पर फोर्स बढ़ाई जाएगी। विरोध भी है सर? हाँ बिल्कुल, ये आज जब ज्ञापन आया तो निश्चित तौर पर उसकी बात होगी।
अब 2 करोड़ पुराने वाहन होंगे कबाड़, आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। एसवाइएल नहर मुद्दे पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा के बीच अहम बैठक। बेंगलुरु पार्किंग संकट पर डीके शिव कुमार का बयान, देश भर के मॉडल्स का करेंगे अध्ययन। तेजस्वी को सत्ता की चिंता, जनता की नहीं, नीरज कुमार का बयान। आईपीएल टिकट घोटाला, एससीए अध्यक्ष जगत मोहन राव सीआईडी हिरासत में। हिमाचल में भीषण तबाही, बाढ़ और तूफान ने छीन लिया जनजीवन। गुरु पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही, 17 की मौत, 35 से ज्यादा अब भी लापता। संजय राउत बोले, जनता चाहती है ठाकरे भाई साथ आए चुनाव में। दक्षिण त्रिपुरा में बाढ़ का कहर, 250 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने संगम नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा को कूटनीति सफलता बताया। भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली में भारी बारिश के बाद भी नहीं हुआ जल प्रभाव, बोली सीएम रेखा गुप्ता। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना, यूबीटी और केंद्र सरकार की आलोचना की। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच